Hi everyone, so welcome to the new video wherein we will be discussing The Hindu, which will be from both prelims and mains perspective, dated February 2, 2022. Regarding February 1 and the other sessions related to the month of January is what have been already uploaded, so you can check from the channel. January we have already started and 1 week is already covered, so we are doing it simultaneously and you would be getting all the January newspaper coverage also very soon. That would be completed. Apart from that, February simultaneously we are covering so that we are on time and it helps you in the preparation of the current affairs. You do get an idea about how do you use these materials for your prelims, mains, and if needed for the interview purposes, right? So those of you who are new to the channel, who have just started exploring the channel, if you find the content relevant, please do like, comment, share and subscribe to the channel so that you are regularly notified about any kind of updates from my side. Very soon I would also be starting with something of static syllabus, but right now that's not finalized, so I'm not able to give a word on that, but soon I'll be informing you. The medium of information also is a Telegram channel wherein if needed I could share any kind of PDF on all these links are also shared there. All these links about the Telegram channel, about the playlists that have been created for the month of January and February, you can access all these links in the comment section as well as in the description video. Just check there and you can easily access them for your own advantage. Let's start with February 2, as I just mentioned, because February 1 was the day when the budget was presented. So this whole newspaper, dated this one, majorly they have given the section related to the budgets only. Of course, how do you prepare budget or economic survey, I have dealt in detail in the previous video of February. Therein I have talked कि आपको basic statics से कैसे आगे बढ़ के काम करना है. So that is something that you would be taking the advantage of. Now, if you're not done with your economics basics, it would be slightly difficult for you to understand the key concepts given in the economic survey as well as in the budgets. There might be some issues which you can easily understand even if you are not done with your basics, but for the majority of the portion, of course, your basics would be needed, right? So I would recommend that you can have a copy of this newspaper 2nd of February, you can remember and keep it side में, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बजट से रिलेटेड है, वंस यू आर डन विथ योर स्टैटिक यू कैन गेट ऑन टू देम. Or alternatively, if you have done a certain amount of your basic syllabus and are comfortable with more or less good enough things, then you can proceed from here. There are many sections for example, starting from here, if we just say, of course I'll not explain the concepts in detail because that's not possible, we are not taking an economy section here. But if you start seeing it from here, from this particular page, you will realize that not every important information would be important to be noted, but there would be many which you will have to keep aside. If you are able to comfortably sort that out right this moment, जब आप अभी के प्रिपरेशन फेज में हो, उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है. दैट्स गुड इनफ, ग्रेट इनफ आई वुड से. बट इन केस यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल, यू फील दैट नहीं, अभी मेरे को और थोड़ा स्टैटिक समथिंग दैट आई वुड स्टिल नीड टू कवर ऑन एंड देन आई हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली ओनली, देन वॉट यू कैन डू इज टू रिमेंबर कि ठीक है, आपको 2nd of February का न्यूज़पेपर डिजिटल कॉपी में, और इफ़ यू आर हैविंग द हार्ड कॉपी, जस्ट कीप इट सेपरेटली सो दैट यू कैन रिविजिट दैट लेटर बिकॉज दे हैव गिवन अ गुड कवरेज फॉर दैट. नाउ इशूज़ लाइक फिनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है. अब आपके पूरे जो सिलेबस है ना, GS3 का स्पेशली जो सिलेबस है इकोनॉमिक रिलेटेड, उसमें ऐसे बहुत सारे हेडिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव अ सेपरेट सेक्शन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस पर पहले एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है स्कीम को लेके. दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लेट्स से डिजिटल करेंसी और कैपेक्स क्या होता है, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नो, फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको बहुत सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए. तो अगर आपके पास सिलेबस है एंड इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दैट व्हाट आर द हेडिंग्स दैट दे हैव गिवन इन द सिलेबस, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू एटलीस्ट कैटेगराइज दोज थिंग्स देयर. While let's say you are going through the article and if you feel that no, I still want to go to the article right now, even if I have not done my basics, whatever important factual informations you are finding, you would be noting it down separately, even if some of that you do not understand. You can have a star mark over there, asterisk over there, and maybe revisit that particular point later, so that you have a collection of all the important factual details which are very much needed for your prelims perspective. तो उस चीज़ को आप साइड में करते चले जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या बात हुई है, जैसे कि
the finance minister proposed a 30% tax on income from virtual digital assets. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा कि पता होना चाहिए कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स होते क्या हैं. एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक क्रिप्टो करेंसीज एंड नॉन फंजिबल टोकन्स. तो अब पता होना चाहिए ना कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, फंजिबिलिटी क्या होती है, etc. This is how you get an idea. Even if you have, let's say, not done this is in your basics, now that you get these keywords, so that you will note down separately, and your focus would be to first finish the concepts related to those keywords and then come on to the current affair related news कि ठीक है बजट में ये बात हुई है. नहीं तो आपको 30% टैक्स तो समझ में आ गया कि इनकम इससे अगर जनरेट होता है तो 30% टैक्स लगेगा, पर ये है क्या, कैसे, these are the things that you will not be able to then figure out. तो वो बेसिक्स आप साथ में कवर करेंगे. Now here again it is the next few pages are just going to be about budget, so it's not something जो कि आपके लिए immediate relevance का रहेगा. एक बेसिक्स फॉर्मेशन के बाद ही आप उसको यूज़ करेंगे. 5G सर्विसेज टू रोल आउट इन द फाइनेंशियल ईयर 23. तो ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए. वन लाइन यू कैन इवन हैव अबाउट इट, उसमें कोई हार्म नहीं है. Then here a whole section they have given on the taxes. So let's say if you prepare your static of the taxes in your economics and then you revisit this page, I hope now you will understand that it will be very easier for you now to relate कि अगर आपके पास taxes का बेसिक्स तैयार है, स्टैटिक तैयार है, तो अब आपको ये स्लैब्स क्या होते हैं, पहले जैसा है, क्या चेंजेस आए नहीं आए, ऑल दीज थिंग्स, कि आप यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या बात करा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गुजरात में, तो IFSC क्या है, यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट सिटी की बात करी है, आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करी है. ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, सीधा आस्क यू इन प्रीलिम्स, और लेट्स से इन एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सच काइंड ऑफ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आर प्रिटी मतलब प्रोबेबल आई वुड से. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की है, गेट दी टैक्स एंड दी सरचार्ज रिलीफ. तो अब सबसे पहले तो यही है ना कि आपको पता होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, सरचार्ज क्या होता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है. ये सारे कीवर्ड्स आप यहाँ से निकालोगे. सो जस्ट अंडरस्टैंड, आपको जस्ट ब्राउज करना है जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकलते जा रहे हैं उसको एक जगह नोट डाउन करते जाइए एंड जस्ट कीप देम रिवाइजिंग सो दैट इट बिकम्स हैंडी व्हेन यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम. रेस्ट फॉर एवरीथिंग यू विल जस्ट सी इट एंड यू विल नोटिस कि ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ 3-4 कीवर्ड्स ले लिए और उसका मेरे पास एक लिस्टिंग है. जब मेरा वो स्टैटिक हो जाएगा तो अब मेरे लिए इस न्यूज़ को रिलेट कर पाना आसान हो जाएगा स्टार्टअप्स के लिए. तो दिस यू कैन यूज़ इन द एग्जाम्पल बिकॉज स्टार्टअप्स पर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. वी नीड दैट टू हैपन फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. अच्छा, इन्वेस्टर्स को लेकर इन्होंने अलग से बात करा है, तो अगेन इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जब आप पढ़ेगा आपको खुद अब जैसे वेंचर कैपिटल क्या है, प्राइवेट इक्विटी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके के जो होते हैं, तो ये सब कीवर्ड्स आपको यहाँ से मिल रहा है. तो विदाउट बेसिक्स तो आप कर ही नहीं पाओगे. दिस सेक्शन इज़ ऑन इकोनॉमी. दे हैव टॉक्ड अबाउट लेट्स से ग्रोथ बजट क्या है, मार्जिनल इंक्रीज दिख रहा है इनको, टेक्सटाइल सेक्टर पे इन्होंने बात करी है. ठीक है, MSMEs को लेके दे हैव टॉक्ड अबाउट. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो फंड की बात करी है फॉर दी तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान ऑल्सो. तो ये सब जो है आपको वन लाइन में आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अब यहाँ पर जैसे क्या है कि एक प्रोग्राम आ गया, एग्जाम्पल रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, दैट इज़ रैम्प प्रोग्राम. तो अब आपको रिलेट हो जाएगा ना कि ठीक है किस चीज़, अब मान लीजिए उन्होंने दे दिया रैम्प प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू, इफ़ दे डू नॉट गिव यू द फुल फॉर्म तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिस M स्टैंड्स फॉर द MSME एंड दे गिव यू दैट रैम्प प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर, तो या फिर इज़ रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ टॉकिंग अबाउट MSME. इस तरीके से आप अपने प्रीलिम्स के लिए पॉइंटर्स निकालोगे. जैसे यहाँ पर आ गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, किस चीज़ से रिलेटेड है या इसके क्या 2-4 प्रोविजंस हैं आपको पता होना चाहिए. इस छोटे छोटे में आप यहाँ पर अब हो गया जैसे सिविल वॉर की बात कर दी इन्होंने, मिलिट्री कू की बात कर दी, भूटान की बात कर दी, म्यांमार को यहाँ तो लेके कर ही दिया. तो ये सारी कंट्रीज़ को लेके बजट में क्या हमने प्रपोजल देखा है उसको आप अलग से करेंगे. इकोनॉमी से ही रिलेटेड कंटिन्यू हो रहा है, डिजिटल इंडिया पे बात हो रही है, इन्फ्लेशन से लेके बात हो रही है. तो जब तक आपको इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट. ठीक है, इस तरीके के जो भी देखिए रूरल स्पेंडिंग की बात हो रही है, MG नरेगा की बात हो रही है, एजुकेशन डेवलपमेंट, स्कूल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर. ऐसा नहीं है कि आपको ये सब अलॉटमेंट याद रखना है कि ठीक है कितना फंड अलॉट हुआ या फिर किस तरीके से ये अप डाउन हो रहा है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक रफ पैटर्न क्या रहा है. एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो गिव्स यू अ ग्रेट होल्ड ओवर दो स्मॉलर डिटेल्स.
ग्रीन बॉन्ड्स टारगेट कार्बन न्यूट्रलिटी। अब तो पता होना चाहिए ना ग्रीन बॉन्ड क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, नेट ज़ीरो का क्या मतलब है, और ये आपका इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमी में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो उसमें से प्रीलिम्स पॉइंटर्स निकलेंगे वो तो यूज़ हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आ गया आपको, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स। तो अब आपको ये सब छोटी छोटी, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड मार्केट, ये सब टर्म्स पर आपका कमांड होना चाहिए। डिजिटल रुपी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जब आप क्रिप्टो करेंसी पढ़ेंगे एनीवेज यू विल कम अक्रॉस द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिजिटलाइजेशन इज समथिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन अ लॉट इन एवरी सेंस। तो वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज़ हो रहा है, दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। ई पासपोर्ट्स टू बी रोल्ड आउट सून, ये बस इट इज़ अगैन जस्ट अबाउट द डिजिटल पासपोर्ट। तो बस ये पढ़ के इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट दैट्स ओके। हेल्थ सेक्टर पर बात की जा रही है, हेल्थ केयर सेक्टर एलोकेशन में। इसको आप जब भी कोविड रिलेटेड मामले पे बात आएगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, तो ऑफकोर्स फंडिंग बिकम्स अ वेरी मेजर इशू इन दैट, एंड देन इन दैट सच सिचुएशंस इट is very much, I would say ki advisable to quote about what the budget has, like what the provision in has, the provision related to the budget, or let's say the provision related to the health sector in the budget, वो आपका एक अलग से mention रहना चाहिए. Experts welcome boost to the mental health sector. See, something which have been talked about, and healthcare industry experts have expressed mixed reaction to the union budget, stating that while the boost to the mental health sector is welcome, the budget does not hold much promise for other essential services in the health sector. तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो कि सुनने में लग सकता है कि एक ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी, ठीक है, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हमें उससे नहीं मतलब है. हमारा आइडिया हियर इज़ नॉट टू गो इनटू दैट पॉलिटिकल स्टफ. हमारा आइडिया हियर इज़ टू गो इनटू कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कवर करे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं. तो किसी के भी आर्ग्यूमेंट से आप जो निकालोगे सिर्फ उतना ही निकालोगे. एंड फोकसिंग एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ सेक्टर, इफ़ दे आर मेंशनिंग इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री का क्या काम है, जॉब क्रिएशन, दैट विल बी अबाउट employment and unemployment issues, which again is a part of your GS3 and 1 also. सोशल इश्यूज़ में भी हो जाता है, GS3 में भी हो जाता है, और ये सब गवर्नेंस में आता है तो GS2 में भी कवर हो जाता है. ठीक है. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पे बात की गई है. इसी तरीके से आधे ज़्यादा स्कीम तो बजट से ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं. ड्रोन्स को लेके अब हमने उसी दिन बात की थी, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बात की थी. यहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट ड्रोन शक्ति ऑल्सो, ड्रोन सर्विसेज को लेके बात की है उन्होंने. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको वहाँ पर एक टेबल दिखाया था जहाँ पे ड्रोन्स के यूजेज सारे दिए गए थे, एंड इन प्रीलिम्स अर्लियर दे हैव ऑल्सो आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दैट. सो आपको सीधा यहाँ से पॉइंट जो है वो मिल जा रहा है, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन द पुशिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ द ड्रोन्स थ्रू द स्टार्टअप्स. टास्क फोर्स टू गिव डायरेक्शन टू एनिमेशन गेमिंग सेक्टर. सी समथिंग which the youth is very much interested in, the sector which is very very lucrative for the youth, but because of many reasons, it's not, you can say ki it is not getting that much of exposure. The people are not getting it. It's also about how costly it is, how they are going to manage the fund, etc. But here what they have said, that it will help to improve the exposure to the global market, because in the global market this sector is booming. तो अब हम इंडिया में इसके लिए क्या स्टेप ले रहे हैं, ये आपको रेलिवेंट हो जाएगा. एग्रीकल्चर सेपरेट आपका GS3 में एक टॉपिक है. इसको बहुत शांत दिमाग से, ये जो जितने पेजेस मैं अभी दिखा रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज दैट विल नॉट मेक सेंस राइट नाउ. वी विल हैव टू हैव दैट छोटा छोटा स्टैटिक का पोर्शन प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो लेकिन आप इस तरीके के पॉइंटर्स को, अब जैसे यहाँ पर क्या बात हो जा रही है, किसान ड्रोन्स को यूज़ करने की, to be promoted for the crop assessment, digitization of the land records and spraying of the insecticides and the nutrients. तो ये सब होना चाहिए ना मेंशन. PM किसान स्कीम की बात हो जा रही है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री की बात हो जा रही है. तो ये सब पॉइंटर्स आप प्रीलिम्स में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो. और बाकी तो पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही ये पेज है. ठीक है, नेचुरल फार्मिंग के पे बात हो रही है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है. It's giving you great point. You will just have to be very patient while dealing with this. इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पहले ही बोला, GS3 में अलग से सेक्टर है. ठीक है, रेलवेज़ के लिए क्या है, यहाँ पर उन्होंने बात की हाई लेवल पैनल ऑन द अर्बन पॉलिसीज़ कि उसमें हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं. बिग बूस्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द हाईवेज, रोड हो गया, रेल हो गया, सोलर मैन्युफैक्चरिंग पे तो आपका GS1 एनर्जी से रिलेटेड, एंड ऑफकोर्स GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों में काउंट हो जाएगा. SEZ लॉ,
SEZ होता क्या है, ठीक है। तो जहाँ पे इन्होंने जैसे यहाँ पर बात करी ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेके, तो होता क्या है ये, सबसे पहले एग्जिस्टिंग एक्ट पर ये बात कर रहे हैं उसका एम क्या था। तो अब अगर वो नया कुछ प्रपोज कर रहे हैं तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड एडवांटेजियस। फिर एक और आता है सोशल सेक्टर को लेके। अब देखिए ये सब ओवरलैपिंग करता है। GS1 में यू हैव द सोशल इशूज़, GS2 में ऑल्सो द गवर्नेंस एस्पेक्ट कवर्स दीज थिंग्स, क्योंकि सोशल सेक्टर में सरकार क्या रोल प्ले कर रही है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड बिकॉज इट्स कमिंग इन द बजट, तो ये इकोनॉमिक ओरिएंटेड क्या चीज़ें हैं वो GS3 कवर कर रहा है। दिस इज़ हाउ इट इज़ इंटीग्रेटेड, इट कैन नॉट बी looked in a very silos or in an isolated manner. You will have to be able to link the aspects for that matter. MG नरेगा की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले तो पता ही होना चाहिए कि बेसिक ये स्कीम बात क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जैसे बात की, बाकी उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब मान लीजिए यहाँ पे हो गया दैट इट इज़ अ डिमांड ड्रिवन स्कीम गारंटिंग 100 days ऑफ अनस्किल्ड वर्क टू एनी रूरल हाउस होल्ड दैट वांट्स इट। अब इन्होंने सीधे आपको उसका डेफिनेशन दे दिया। सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन यूज एज एन इंट्रोडक्शन इन योर आंसर राइटिंग। इस तरीके का जो डेफिनेशन या कोई भी मेजर डेटा होता है, और लेट्स से इन द प्रीलिम्स दे गिव यू कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट MG नरेगा, ठीक है, विच ऑफ दीज आर करेक्ट और इनकरेक्ट, एंड वहाँ पे उन्होंने लिखा दैट इट इज़ अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। तो अब आपको उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी रूरल हाउस होल्ड जिसको चाहिए, क्योंकि ये डिमांड अगर है उनको चाहिए तो वो मिल रहा है, 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो दे रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ अनस्किल्ड वर्क। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एम्फसाइज्ड, नहीं तो फिर आप मिस आउट कर जाओगे। अब यहाँ जैसे इन्होंने बात करा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, LFPR, तो आपको पता तो होना चाहिए ना सबसे पहले कि ये रेट होता क्या है, उसके बाद तो उससे रिलेटेड डेटा का यू विल मेक सेंस, नहीं तो फिर आपके लिए तो वो ऐसे ही हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। PM आवास योजना रूरल एंड अर्बन, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है, क्या रूरल और अर्बन कॉम्पोनेंट को सेम ही मिनिस्ट्री डील करती है और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टेक केयर ऑफ दैट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके क्यूरियोसिटी से निकल के आने चाहिए एंड यू विल फाइंड द आंसर्स टू देम, ठीक है। आवास योजना पर ही सेम है। डिजिटल वैसिटी एंड ई कॉन्टेंट फॉर द स्कूल्स, सब्सिडीज टू डिक्लाइन न्यू जनरेशन, आंगनवाड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के लिए क्या काम किया गया है। We are skipping the editorial. Again, this is continuing with the budget only, but here it is more about the political orientation. किसको क्या लग रहा है, ठीक है, who is telling what, who is telling what, who is telling what, who is telling what. तो this is just political के हिसाब से I would say कि you can absolutely ignore it. If you want to read it just for your कि मेरे को pointers मिल जा रहा है and what are the opinions of the different leaders, that is okay, but otherwise हमारे exam oriented इसमें कुछ नहीं है। अभी तक जितना था that was very important। यहाँ से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेज दे हैव गिवन द नॉर्मल, जैसे वो न्यूज़ अपना बाकी चीज़ों को लेके देते हैं, तो हमारा जो बेसिक कवरेज होता है वो यहीं ऑनवर्ड्स होता है। दिस इज़ व्हाट विल डू, चाहे वो बात पेगासस को लेकर हो या सब्जुडिस को लेकर हो, ये दोनों टर्म्स पहले आ चुके हैं, एंड इन द अर्लियर न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ जनवरी आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। तो आई विल रिपीट फॉर द लेट्स से द न्यू यूजर्स that it would be very difficult for you to correlate what I am telling if you have not followed the earlier videos, ठीक है। Although every day of course the newspaper is, I would say it's a new day and they have the new news coverage, but there are many things which are being built up over a period of time, ठीक है। वो पुराने समय से चल रही होती है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ एक दिन में सडनली नहीं होती, वो तो कोई ऐसा जिसको जैसे ये लोग ब्रेकिंग न्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। So if something like that happens, that's a different thing, but apart from that, these are the issues which are building up over a period of time. So for that, अगर आपके पास जितना ज़्यादा background information है, it becomes easier for you to relate it to the next news, because they will not be giving you the same news again and again. They will be giving you the topic again, but not the same news clip. तो वो चीज़ आप ध्यान रखोगे। 6 dead in abandoned coal mines in धनबाद, ठीक है। अब इसका जिक्र क्यों है, इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहते हैं विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट हमारे ऑफकोर्स डायरेक्टली एग्जाम में कोई उससे नहीं पूछेगा। फिर हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स की तरह हम इन चीज़ों पे करेंगे कि क्या कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर कंसिडर्ड एज लेट्स से द लूप होल्स, जिसको कि हमको कवर करने की ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बात किया इलीगल कॉरिंग वॉज ऑन व्हेन द माइंस कोलैप्स्ड, तो ये सब इश्यूज़ हैं ना, अगर ये टैकल हो जाते, या फिर लेट्स से हम बोलेंगे कि ये चैलेंजेस हैं,
अगर ये टैकल हो जाते तो हम कितने लोगों की जान भी बचा सकते थे. तो इलीगल एक्टिविटीज़ अगर कैरी आउट हो रही है, अब क्वारिंग का क्या मतलब होता है, माइनिंग का क्या मतलब होता है, ये सब आपको बेसिक टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए. तो इन सब चीज़ों को हम उस तरीके के एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, दे कोलैप्स्ड एज द माइनिंग वाज बीइंग डन इलीगली, तो आप इसको इश्यूज़ की तरह यूज़ करोगे और आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाँ ऐसा एक बार हुआ था. यू जस्ट डोंट हैव टू गिव द एग्जैक्ट नंबर कि अच्छा 6 लोग मरे या समथिंग लाइक दैट. ऑफ कोर्स नॉट. यू कैन जस्ट टॉक अबाउट कि ओके रिसेंटली. ठीक है, जैसे जब भी अभी तो ये अभी का इशू है. अभी समबडी मान लीजिए कि कोई स्पेशली लेट्स से अभी जैसे मेंस हुआ है, तो जो लोग इंटरव्यू अपियर कर रहे होंगे उनके लिए एक रीसेंट न्यूज़ हो जाएगी ना, तो दे कैन कोट दिस एंड टॉक अबाउट इट. आपका जब नेक्स्ट ईयर का आएगा उस हिसाब से, तो आपके टाइम पे जो भी जिस भी जगह से रिलेटेड लेट्स से कहीं पे मान लीजिए कोई डिज़ास्टर को लेके हो गया, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, या इस तरीके के इंसिडेंट्स हो गए, तो आप उसको रिसेंटली करके अपनी बात प्रेजेंट कर सकते हो, इधर इन योर मेंस और लेट्स से इधर इन योर इंटरव्यू. दैट डिपेंड्स ऑन दैट. बट आपको वो चीज़ें समझ अभी से आ जानी चाहिए कि इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. इलेक्शन कमीशन पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं और अभी ये न्यूज़ में बॉडी एनीवेज रहेगी बिकॉज ऑफ द अपकमिंग इलेक्शंस इन सेवरल स्टेट्स, तो वो तो आपका आते जाएगा. तमिलनाडु अर्जेस केरला टू इंक्रीज आउटफ्लोज फ्रॉम दी सिरुवानी डैम. मैंने आपको पहले ही बोला, कितने भी जैसे ये फॉल्स वगैरह आ रहे हैं, डैम्स वगैरह आ रहे हैं, रिवर्स से जो लिंक रहेगा कि किस रिवर से लेट से एसोसिएटेड है या फिर किस स्टेट से एसोसिएटेड है, आपको बस उसकी एक लिस्टिंग बनानी है. रेस्ट क्योंकि हमारा इंटरस्टेट में वाटर डिस्प्यूट इज ऑल्सो अ इशू, जो कि टॉपिक है जो कि आपको कवर करना है. एंड इंटर स्टेट रिलेशंस आपके पॉलिटी में, आप लक्ष्मीकांत अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक सेपरेट चैप्टर है ऑन द इंटर स्टेट रिलेशंस. देयर इन दे टॉक ऑफकोर्स ऑन द मल्टीपल इशूज़, लेकिन वाटर डिस्प्यूट्स आर अ मेजर फैक्टर फॉर दैट. तो वहाँ से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं आपके पास एक जगह से एक जगह पर जो है वो सब इकट्ठा हो. ये अब देखिए एक एग्जाम्पल क्या बोलता है कि सिटीजन्स फोरम लॉन्चेस द कैंपेन अगेंस्ट हेट पॉलिटिक्स. ऑफकोर्स दिस इज नॉट समथिंग जो कि कोई बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, नेशनल गवर्नमेंट ने करा या स्टेट गवर्नमेंट ने करा, बिल्कुल नहीं. किसने करा? सिटीजन्स ने करा. दैट्स अ सिटीजन्स प्लेटफॉर्म. कहाँ से? गुरुग्राम नागरिक एकता मंच. ठीक है, it is known for the work on the communal harmony during the COVID, and now they have launched an online campaign on the social media asking people, urging people to speak up against the hate politics. जो लोग ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, hate speeches are given etc. So the idea is कि आप इस तरीके की चीज़ों को example you can talk about कि how the citizens are playing a role in that. It's not only needed that the government is only taking certain step and you are just quoting that an example. No, बिल्कुल ज़रूरी नहीं. अगर लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं उस चीज़ को कि हम आगे बढ़ के साथ रह के किसी चीज़ को होने से रोक सकते हैं, समथिंग विच इज़ नीडेड फॉर द सोसाइटी, समथिंग विच इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वाई नॉट कैन यू यूज़ इट एज एन एग्जाम्पल? प्लीज़ डू दैट. ठीक है, इसीलिए इस तरीके के चीज़ों को आपको सेपरेट नोट करना पड़ता है. अगेन अनदर थिंग to be used as an example, it says that YouTuber sent to the police custody. अब बात है कि यहाँ पर हम इसको क्यों कवर करेंगे? हम इसको इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, that this person whosoever it was, हमारे वो काम का नहीं है, was arrested for instigating the students to hit the streets. So you can talk about the role of social media or let's say the digital platform. जितना इसका फ़ायदा है कि आप अच्छी चीज़ों के लिए बात स्प्रेड कर सकते हो और पब्लिक को ज़्यादा पता चलता है, उतना ही नुकसान भी इस चीज़ के लिए है. क्यों? क्योंकि इसको नेगेटिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. दैट इज़ वाई. देन क्लैरिफाई द स्टैंड ऑन मैरिटल रेप. हाई कोर्ट टेल सेंटर मैरिटल रेप को लेके हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं और सरकार और कोर्ट के बीच में क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं. यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग एवरी डे एंड जस्ट गेट एनी पॉइंट इफ़ यू फील लाइक एडिंग इट, बिकॉज इस पर भी और आएगा, सेक्शन आएगा. ठीक है, नेक्स्ट कल के जो 3 फरवरी का पेपर है ना, उसमें आएगा. प्लेसेस मैपिंग पर जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ये सब हम पहले यूक्रेन का स्टैंड, यूक्रेन क्राइसिस क्या है, तो ये सब जो इश्यूज होते हैं यू विल जस्ट रीड देम. और अगर आपको लगे अगेन कि आपको 1-1.5 साल के बाद ये चीज़ यूजफुल हो सकती है तो कीप नोटिंग इट, अदरवाइज जस्ट रीड इट एंड लेट इट गो. क्योंकि इशू क्या है वो आपने पहले कवर कर लिया. जो लोग मेरे साथ इस सेशन को कर रहे हैं, I would assume that you are serious enough that you have covered that already. So if you have already done that, it will be easier for you कि just आप उसमें build up करते
जाएंगे. जापान अडॉप्ट्स द रेजोल्यूशन ऑन चाइना राइट्स सिचुएशन. कि जापान और चाइना को लेकर यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जापान की जो पार्लियामेंट है पास्ड रेयर रेजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग द कंसर्न अबाउट राइट्स इश्यूज इन चाइना इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स उइगर मुस्लिम पॉपुलेशन एंड द सिटी ऑफ हांगकॉन्ग. तो एक तो कोई भी जैसे कम्युनिटी रिलेटेड है तो कहाँ को बिलोंग करते हैं आपको ये पता होना चाहिए. छोटा छोटा प्रीलिम्स में ये मैच वगैरह में पूछ देते हैं. दूसरी चीज़ कि वाई हैज़ जापान अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन. ठीक है, तो व्हेन यू विल रीड दिस आर्टिकल तब आप उसको इंटरनेशनल फोरम में इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं या ग्लोबली इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं GS2 में, आप उसको एग्जाम्पल की तरह नोट डाउन कर सकते हो. बाकी आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डायरेक्टली आस्क यू एनी प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम हियर. Amnesty labels Israel an apartheid state. I would say an important news for the purpose. Again, example में ही यूज़ होगा, मेंस में ही यूज़ होगा GS2 में. लेकिन अब प्रीलिम्स में जैसे एक बार पूछा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, इसलिए मैंने उस दिन आपको बोला था जैसे ऑक्सफैम इंडिया, आपको पता होना चाहिए ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लेके विच आर वेरी फेमस दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर. सेकेंडली, चूँकि ये फेमस है और अगर ये कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ सामने ला रहे हैं और इफ़ दे आर मेंशनिंग अबाउट इट, ऑफकोर्स उसका मेंशन या उसका नोटिंग ज़रूर रहना चाहिए बिकॉज दे हैव सम सिग्निफिकेंस. राइट और रॉन्ग इज़ अ डिफरेंट थिंग. Okay, so here they say that they have labeled Israel an apartheid state and they state that treats Palestinians as an inferior racial group. तो ये इशू आपका, क्योंकि पैलेस्टाइन और इसराइल ऑलरेडी इशूज से घिरा हुआ है, किस तरीके के इशूज से घिरा है दैट यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल, बट हियर दे हैव गिवन अनदर एंगल टू इट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हो गई है एपथाइड यानी रेसिज्म को लेकर के मुद्दा उठाया जा रहा है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी नॉर्मल सिचुएशन दैट वाज एग्जिस्टिंग बिटवीन देम. एंड ऑल्सो दे से दैट द इजरायली पॉलिसीज मेट द क्राइटेरिया फॉर द एपथाइड अंडर द इंटरनेशनल लॉ. तो ये इंटरनेशनल इशूज़ पर बात आ जा रही है. चाइनीज़ फ्रेंच फर्म सिंक युगांडा ऑयल डील, ये सब वन लाइनर के न्यूज़ हैं, आप एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे. अगर आपको कुछ लगा यू कैन नोटिस, अदरवाइज जस्ट रीड इट एंड लेट इट गो. हाँ, इस तरीके से जो भी जैसा वाटर बॉडी लेट्स यहाँ पर बात हो गई लेक एल्बर्ट. ठीक है, इस तरीके से कोई भी लेट्स इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी की बात हो रही है या कोई भी ऐसा प्लेस जिक्र में आ रहा है जो कि आपको लगे कि मुझे उसका लोकेशन नहीं पता, यू कैन हैव इट इन द लोकेशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. दिस इज जस्ट टू बी स्किप्ड. स्पोर्ट्स आ गया है एंड दिस इज नॉर्थ कोरियाज मिसाइल टेस्ट. जितने लोगों ने मेरे साथ जनवरी के न्यूज़पेपर का करा है एंड ऑल्सो फरवरी वाला एक करा है, यू नो दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस. ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन ये न्यूज़ में ऑलरेडी आ रहा था, बट दैट वॉज छोटा छोटा क्लिप दैट वॉज कमिंग एंड नाउ दे हैव गिवन यू द डिटेल फॉर दैट. ठीक है, तो अब आपके पास सारा जो है इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर है, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजेस दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट, एंड ऑफकोर्स चूँकि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है तो इट्स ईजियर टू ग्रास्प देम एंड यूज इट. द FTA टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड द UK. यहाँ से FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. तो ये एक आपका इकोनॉमी में आ जाएगा और IR में हो जाएगा. IR में इसलिए क्योंकि ये बायलैटरल दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन की बात करता है और उसका जो इकोनॉमिक एंगल है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का वो आपको इकोनॉमी से पता होना चाहिए एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन द ग्लोबल सिनेरियो और लेट्स से द इंटरनेशनल रिलेशंस, वो आपको GS2 में कवर हो जाएगा. सो यू विल बी एंड यू हैव ऑलरेडी गॉट इट इन. देखिए, इन्होंने ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ डिफाइन करके दे दिया कि FTA होता क्या है. सो दे से दैट इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज वेयर इन इट फॉलोज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड फ्रॉम बोथ द साइड्स. दोनों साइड से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री ट्रेड, नाम ही है ना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. तो हमने अग्रीमेंट कर लिया, साइन कर लिया, डील हो गई और अब वो फ्रीली उस चीज़ को कैरी आउट करेंगे, दोनों तरफ से हो जाएगा. बायलैटरल है, अभी यहाँ पर केस बायलैटरल है. एंड रिमूव यू ऑल द टैरिफ बैरियर्स टू बूस्ट ट्रेड विथ वन अनदर. ठीक है, अब बस आप उसका सारे डिटेल कर लेंगे कि इंडिया के लिए इसका क्या यूजेज है, व्हाट इज़ इंडिया सीकिंग फ्रॉम UK, इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एंड व्हाट आर द सेक्टर्स दैट विल बेनिफिट. तो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल गया. गुड इनफ पॉइंट्स फॉर योर बायलैटरल रिलेशंस ऑल्सो. IR में जो एक एस्पेक्ट होगा इकोनॉमी का और इकोनॉमी का अदरवाइज तो है ही. ठीक है, MG नरेगा को लेके मैंने ऐसे ही बोला, आप उसको डिटेल में अच्छे से कर लेंगे. जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है वो यू कैन सेग्रीगेट, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट फ्रॉम देयर ओनली. ओके, क्योंकि पेमेंट्स पे बात हुई है ना, अभी हमने देखा कि बहुत बार जो है ट्रांसफ़र करने की बात होती थी बट बहुत सारा पेमेंट जो है वो अटका पड़ा हुआ है, दे आर नॉट गेटिंग.
So budget का भी इससे क्या relation है, otherwise also employment से related, you can check from here. So this is where we end the newspaper discussion of 2nd of February. Initial few pages were there which were just focusing on the budget aspect. For that, I repeat, you will have to have the command over the economic concepts and the basics. So you can either refer to these news clips time and again जब आपका वो सब topics खत्म हो जाए, और अगर आप अभी segregate कर पा रहे हो, even if you let's say don't understand the concept, note it down somewhere but have the news related to it written. So that when you do the static concept of that particular thing, आपके पास एक gist already तैयार होगा, आपको बस उसको revise करना, और तब आपको concept भी समझ आ जाएगा क्योंकि आपका already static किया हुआ होगा. So I hope this would be of some use to the serious aspirants, because non-serious को तो कुछ इसमें useful नहीं लग रहा होगा, आपको नहीं समझ में आएगा. If you really want to be serious enough, if you really want to do the whole newspaper thing on your own, okay, you don't want to rely, because आज के time में किसी भी source, there is no single source in the market which can give you that guarantee कि अच्छा यहाँ से पढ़ लो और इसमें से इतने questions आ रहे हैं. I'm sorry, but this is not happening since past few years. So if you are just making fool out of yourself, that doesn't justify the time you're investing in this, the energy and everything, money and everything you're investing in the preparation. So just focus on the right thing, and the right thing is that you yourself devote time to that. ठीक है? The only thing I'm helping you with is to know कि आप इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ use कर सकते हो. But I am not doing the ready-made material for you, because this is what you are supposed to do for yourself. Try and work that out. Let's see how it goes for you. Okay? And please do let me know in the comment section your feedback, how it is helping, etc. Do like, comment, share, and please subscribe to the channel. See you in the next video, wherein we'll discuss the newspaper of 3rd of February. And please do check all the January video also, which are there on the channel. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care.